Bismillahirrahmanirrahim. Now we will discuss the different properties regarding sets. Properties of sets. Dear student, as we have already discussed the set, now we will discuss the different properties of sets. The first one is commutative property of union and intersection. The second one is associative property of union and intersection. The third one distributive property of union over intersection and distributive property of intersection over union. Okay, dear student, we have to discuss different properties of sets. The first one is commutative property of union and commutative property of intersection. First, for commutative property, we need only two sets. If we have set A 1, 2, 3 and set B is 2, 4, 6. So according to the commutative property of union, the statement is A union B is equal to B union A and A intersection B is equal to B intersection A. This is called commutative property of union and commutative property of intersection. For commutative property, we need only two sets. Suppose we have set A, that is 1, 2, 3 and B 2, 4, 6. So this is called commutative property of union and intersection. The second one is associative property of union and intersection. For associative, we need three sets. And other set, if we consider 1, 3 and 5. So for associative, we need three sets. So A union B union C is equal to, same thing we can write here, A union B union C. स्टूडेंट्स के लिए ये प्रॉब्लम होता है याद करने में, इसको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. सेम चीज here we have to A union B, यहाँ पे तीसरी सेट को भी कंबाइन करें A union B union C. राइट साइड पे सेम चीज यही प्लेस करें. जिस तरह A union B union C, यहाँ पे भी A union B union C. अब करना क्या है, मैथमेटिक्स रूल के मुताबिक हम दो चीजों को एक साथ लिखेंगे. आप तो या A यूनियन B को कंबाइन करें या B यूनियन C को कंबाइन करें, जो आपकी मर्जी, जिसको कंबाइन करना चाहें. मैंने इसको इससे सेपरेट कर दिया है, B यूनियन C को सेपरेट कर दिया है. तो अब करना क्या है, राइट साइड पे आप इससे दूसरे जो दो सेट्स हैं, यहाँ पे हमने B और C का सेपरेट किया है, यहाँ पे A और B को आप इससे सेपरेट करें, आपकी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कंप्लीट हो गई. नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन. अब कन्वर्ट यूनियन साइन इंस्टेड ऑफ intersection A intersection B
इंटरसेक्शन सी। अब सेम चीज यहां पे भी लिख दें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब लाइक द प्रीवियस आपने क्या करना है, किसी दो सेट्स को आप इससे सेपरेट कर दें। यहां पे मैंने बी और सी को सेपरेट कर दिया, यहां पे मैं ए और बी को सेपरेट कर लेता हूं। यहां पे ए और बी को सेपरेट कर दिया, यहां पे आप ए और बी के अलावा जो दो सेट्स हैं बी और सी, उसको आप सेपरेट कर दें। ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शंस की स्टेटमेंट, जिसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, वो आपके पास आ गई। याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं इसको याद करते हैं, याद करने की बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको जस्ट लर्न करें। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। याद रखें, फॉर कम्यूटेटिव यू नीड टू सेट्स, फॉर एसोसिएटिव यू नीड थ्री सेट्स। For associative only you need three sets, for commutative you need two sets. Associative commutative में आपने क्या करना है, in commutative property you just replace the A union B, यहाँ पे आपने क्या करना है B union A, इसको replace कर दें। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं कि 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, this is also commutative property, commutative property of real number, commutative property of real number। मैंने क्या किया, जस्ट इसके प्लेसेस चेंज किए। अगर मैं लिखता हूं a plus b is equal to b plus a, this is also called commutative property of real number। ये भी commutative property है, ये भी commutative property है। यहाँ पे हमने सेट्स को फोकस करना है, यहाँ पे हमने रियल नंबर को फोकस किया है। सो a union b is equal to b union a, हमने क्या किया, यहाँ पे प्लेसेस चेंज किए। 2 plus 3 is equal to 3 plus 2, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 और 3 के प्लेसेस चेंज किए। तो इस तरह आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। एसोसिएटिव का एक तरीका है कि फॉर एसोसिएटिव यू नीड 3 सेट्स, 3 सेट्स को आप A यूनियन B यूनियन C लिखें, जिस तरह हमने डिस्कस किया है। The next one, distributive property of union or intersection. For distributive property we need 3 sets, again we need 3 sets, जिस तरह A B and C are also 3 sets। यहाँ पे A union B intersection C, as we are discussing distributive property of union or intersection। अब आपने क्या करना है, इसको क्या करें, सेपरेट करें, इक्वल टू। Now the most important thing, A union B having relation with B having also relation with C, so इसको दोनों के साथ लिख दें, A union B, ये A B के साथ इसका रिलेशन हो गया। अब इसके C के साथ इसका रिलेशन ले रहे हैं A यूनियन C। जाहिर बात है दो सेट्स को हमने सेपरेट करना है। अब रहना क्या है, यहाँ पे साइन लगाएंगे। साइन आपने कौन सी, यूनियन का साइन तो ऑलरेडी आपके पास आ गया। सो यहाँ पे क्या करें, इंटरसेक्शन का साइन जस्ट इसमें प्लेस कर दें। सो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B एंड A यूनियन C, बीच में इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। सो दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। सो द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। जस्ट करना क्या है, आपने यूनियन के साइन को रिप्लेस करें इंटरसेक्शंस के साइन में और इंटरसेक्शंस को रिप्लेस करें यूनियन के साइन में। तो मैंने यूनियन को रिप्लेस किया है इंटरसेक्शन में और इंटरसेक्शंस को मैं रिप्लेस कर दूंगा यूनियन में। अब distributive property of intersection or union. Now again A intersection B having relation with A intersection having relation with B as well as with C. So A intersection B and A intersection C. अब यहाँ पे साइन को आप क्या करें, यहाँ पे हमने चूंकि इंटरसेक्शंस को यूनियन में रिप्लेस करना है और यूनियन को इंटरसेक्शन में, यूनियन को मैंने रिप्लेस किया है इंटरसेक्शन में, यूनियन को मैंने रिप्लेस किया इंटरसेक्शन में। तो
अब इस इंटरसेक्शन के साइन को हम यूनियन में रिप्लेस कर देंगे। ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन, जस्ट आपने इसको सीखना है, याद करने की जरूरत नहीं है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस होता है? इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सारे यूनियन सेम होते हैं। इसमें इट मींस कि अगर यूनियन की है सो सारे साइंस सिंबल यूनियन के आने चाहिए। अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो सारे सिंबल जो है वो इंटरसेक्शन के आने चाहिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या आना चाहिए? अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है तो फर्स्ट साइन यूनियन की, सेकंड साइन इंटरसेक्शन की आनी चाहिए। इसमें देखें ये यूनियन और क्या इंटरसेक्शन दोनों साइन चेंज होने हैं। स्टूडेंट को अक्सर ये प्रॉब्लम होता है कि उसको क्लियर नहीं होता कि ये कौन सी एसोसिएटिव है या डिस्ट्रीब्यूटिव। वन थिंग कीप इन योर माइंड, फॉर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास सिर्फ एक साइन यूज होगा, एक सिंबल यूज होगा, और डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके पास दोनों साइन यूज होंगे, यूनियन की भी और इंटरसेक्शंस की भी। अगर पहला साइन यूनियन का है तो इट मींस कि दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर आप देखें कि अगर साइन चेंज है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर साइन सेम है तो ये एसोसिएटिव है। अब आपने देखना क्या है, अब साइन चेंज है, अब जाहिर बात है ये एसोसिएटिव तो नहीं है, ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अब इसको देखें साइन सेम नहीं है, चेंज है, जाहिर बात है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, एसोसिएटिव नहीं है। सो क्या है? ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन। अब थोड़ा सा हम इस पे एग्जांपल लेते हैं। दो सेट्स ऑलरेडी हमने लिए हैं, हमने अब क्या करना है? प्रूफ करना है कि हाउ A union B is equal to B union A. This is left hand. Start है. The second commutative property of A union A intersection B and B intersection A. So this is called commutative property of intersection. Like the union, solve the same questions. This is left hand side, right hand side. Taking left hand side, that is A intersection B. अब करना क्या है आपने? A intersection B is equal to A की जगह A के सेट्स के एलिमेंट्स प्लेस कर दें। A के सेट्स हमारे पास हैं 1 2 4 6। सो A की जगह A का सेट्स प्लेस कर दें 2 4 6। यूनियन इंटरसेक्शन का साइन, B की जगह B का सेट्स प्लेस करें, that is 1 3 5। now intersection, in intersection we always choose the common elements. Common means that element which exists in A set and also in B set. If we see the first sets is the sets of even number and the second set is the set of odd number. So even और odd में तो कोई भी elements common नहीं होता, and here we see that no elements in common in these two sets. As we choose common elements in intersection and there is no common element in these two sets, it means कि our result will be empty sets, null set, या you can write as this is also null set, this is also null set, this is empty, this is empty. If you write this thing as, so this is not null set, this is considered as singleton set. A set having only one element is called singleton set. If we take right hand side, that is B intersection A, so again पहले B का सेट प्लेस कर दें, that is 1 3 5 intersection B की जगह B का सेट 2 4 6। again choose the common element. Unfortunately there is no common element in these two sets, so like the left hand side, so the result will be empty sets, या this
इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिए, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिए। नाउ कंपेयर इक्वेशन 1 and 2. So from the equation 1 and 2 it has been proved that left hand side is equal to right hand side, या like the previous थोड़ी सी explanation यहाँ पे लिख दें। From equation 1 and 2 it is proved that A intersection B is equal to B intersection A. So dear student, this was the proof of commutative property of union and commutative property of intersection. उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो चुका होगा। The second topic, the second property, we have already discussed that associative property of union and intersection, distributive property of union and intersection। तो commutative property की जगह वो उसी तरह आप इसको भी associative property को भी और distributive property को भी आप प्रूफ करें। यानी it means के इसमें मेन चीज ये है union and intersection। यूनियन में आपने क्या करना है, अपने सेट्स को कंबाइन करना है, यूनियन मींस टू कंबाइन। एंड इंटरसेक्शन में आपने क्या करना है, इन इंटरसेक्शन यू हैव टू चूज द कॉमन एलिमेंट। इट मींस कि इफ देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन द सेट्स इन द बोथ सेट्स या आर द थ्री सेट्स, सो इट मींस के उसका रिजल्ट एम्प्टी सेट्स आएगा या नल सेट आएगा। व्हाट इज एम्प्टी सेट? A set having no elements. A set having no element is called empty sets, but a set having only one element is called singleton set। इसमें आप clear करें, this is empty set, but this is not empty set। This is empty, this is called singleton। This is also empty sets। बट अगर आप इस सैंपल को इसके अंदर प्लेस करेंगे तो ये एम्प्टी कंसीडर नहीं होगा, ये इसका एलिमेंट कंसीडर होगा। एंड एज देयर इज ओनली वन एलिमेंट सो इट विल कंसीडर सिंगलटन सेट। अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ वी विल प्रैक्टिकली प्रूव द commutative property या law of union। First of all, write the statement A union B is equal to B union A। आपने करना क्या है, जस्ट इसके प्लेसेस चेंज करनी है, आपकी प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। Commutative property of union and commutative property of intersection। This is commutative property of union and this is commutative property of intersection। मैंने क्या किया, जस्ट प्लेसेस चेंज किए हैं और कुछ भी नहीं किया, जस्ट आपने प्लेसेस चेंज करने हैं। सो इसका ये आसान तरीका है सीखने का। We have already discussed that for commutative you need two sets। Now I am taking two sets। कोशिश करें कि शॉर्ट और सिंपल से सेट्स लेने की कोशिश करें। एक के लिए मैंने ले लिए हैं 2 4 6 यानी फर्स्ट 3 इवन नंबर। बी के लिए मैंने लिए हैं 1 3 एंड 5 यानी फर्स्ट 3 ऑड नंबर। अब हमने क्या करना है, एज वी डिस्कस दैट फॉर कम्यूटेटिव वी नीड टू सेट्स। अब इन दो सेट्स के हवाले से, इन दो सेट्स के जरिए हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है कि कैसे ये हाउ A union B is equal to B union A। So this is left hand side, this is right hand side। Now take left hand side। Taking left hand side, that is what? A union B। It means कि A union B is equal to, अब करना क्या है, union means to combine। In union you have to combine the both sets। आपने दोनों सेट्स को कंबाइन करना है। So first
write the sets of A, that is 2, 4, 6, union की sign. Write the sets of B, that is 1, 3 and 5. अब A union B is equal to, अब करना क्या है? To combine. Union means to combine. आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखेंगे कि एज हमने डेफिनेशंस में डिस्कस किया था कि देयर शुड बी नो एलिमेंट्स रिपीटिशन इन द एलिमेंट्स. अगर कोई एलिमेंट्स इसमें रिपीट हो रहा है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, जस्ट वन टाइम लिखेंगे. सो 1 तरतीब से लिख देंगे तो ज्यादा बेहतर है. 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 6 भी यहाँ पे है. सो 1 2 3 4 5 6 मैंने क्या किया, इस सेट को और इस सेट को कंबाइन किया है. यूनियन मींस टू कॉम्बिनेशन. यूनियन में हमें इन दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, यानी इसकी कॉम्बिनेशन देनी है. इसको आप कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे. नाउ वी विल टेक राइट हैंड साइड, टेकिंग right hand side, that is B union A. Again first we will write B union A. जिस तरह B पहले है, सो पहले B का सेट प्लेस करें. B का सेट हमारे पास है 1 3 5. ये साइंस यहां पे प्लेस कर दें. A की जगह A का सेट प्लेस कर दें, that is 2 4 6. अब अगेन राइट द सेम थिंग, B union A. अब यूनियन मींस टू कंबाइन. आप अगेन इन दोनों को क्या करें, कंबाइन करें, यानी दोनों को एक साथ लिख दें. 1 2 3 4 5 6. मैंने क्या किया, इन दोनों सेट्स को कंबाइन किया है. इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया. नाउ आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सॉल्व हो गए. अब आप इसको देखें, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करें. इसका भी राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 है, इसका भी राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5 6 है. सो यहां पे लिख देंगे एक्सप्लेनेशन, थोड़ी सी आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे. फ्रॉम equation 1 and equation 2 it is proved that के बाद आप जस्ट इसका स्टेटमेंट लिख दें कि A union B is equal to B union A. और इसी तरह आपकी commutative property of union and intersections proof हो जाएगी. If we prove the commutative property of intersection, that is A intersection B is equal to B intersection A. A intersection